अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे वीरो दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? मैं जनाब असल च ना अज शाम ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚਵਾਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਨੇ। ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ 'ਚ ਮੁਕੀਮ ਨੇ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਤੁਫੈਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ, ਫਾਰਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਜੀ ਕੁਛ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਸਰੂਫ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਏ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम, ਖਾਨ ਬਾਬਾ अस्सलाम वालेकुम, ਜ਼ਈਮ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਉਸਮਾਨ ਜਨਜੋਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੋ? ਮਗਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ 6 ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸੂਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 1,80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਆ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 1,32,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਅਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਹ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਦੁੱਲੜ ਮੱਝ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਥਣ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ, 2 ਥਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜੀ 3,90,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਲੜ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ। 2 ਹੀ ਥਣ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਥਣਾਂ 'ਚੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਰੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਣ ਝੋਟੀ ਖਰੀਦੀ ਜੀ 1,70,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਉਸ ਝੋਟੀ ਥੱਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ 7, ਸਵਾ 7 ਜਾਂ 7.5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਕਮ ਭੇਜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੂਲਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਰੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੂਲਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਸੁਨਾਰੇ ਦੀ ਥੜੀ ਤੋਂ ਲੱਜ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਤਲ ਇਮਕਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਯਾਰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਮੂ ਜੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਪਾਓਗੇ, ਹੰਡਾਓਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਟਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਜਬ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਵਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਹरून भाई वालेकुम अस्सलाम,
ਕਿ ਭਾਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੇਵਰ ਬਣਾਓਗੇ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸਾਰਾ ਆਏਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਟਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬਣਵਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਾ ਬਣਵਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ, ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ 9 ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਲਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਇੱਕ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਰਾਫਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੱਝ ਦਾ ਮੈਂ ਨਫਾ ਲੈਣਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ 10 ਮੱਝਾਂ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੱਜਲ ਹੋਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬਵਾਂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਨਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਮਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਅਸੀਂ ਪਾਈਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ, ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ। ਭਾਈ ਹਰੂਨ ਗੁੱਜਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮਸਰੂਫੀਅਤ 'ਚ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਮਜ਼ਗੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਆਪ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦ ਸਾਖਤਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗਰੁੱਪ ਕਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜ਼ਹਿਨ ਮੁਤਾਬਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੁਰਫਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭਰਾ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੰਨ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ 60,000 ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਦਰ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਮਝੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖਵਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਰਾਣਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 50,000। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੁਛ ਅਮਾਊਂਟਸ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬੋਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਫਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਪਿਓ ਮੰਨੇਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਓ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ? 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਬੂਰੀ ਸਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਜੇ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 50,000 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ, ਵਾਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਨਾ। ਤਾੜੀਆਂ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50,000 ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੱਖ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਖਸਿਰ, ਸਾਡੀ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਤੇ 8.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ MNA MPs ਆਏ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 400 ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੇ ਲੋਕਾਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਣਗੇ। ਦੋਸਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਨਮੋਲ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਨਮੋਲ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲ ਵਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਕਾਤ ਦੀ ਮਾਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਣਾ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਦਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। 4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਚਿਮੜੋਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਹੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਭਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਜੀ? 6 ਮਹੀਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਹੋ ਗਈ 365 ਦੀ। ਹੁਣ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਫਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੱਡਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਤਾ। ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਤਸਰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਮਝਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਈ ਦਫਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ 12-12 ਵਜੇ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਦਈ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਫਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ 10 ਲੈ ਗਿਆ 20 ਲੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਨੇ ਬਾਲਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੇਲੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਨੱਪਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲੀਦਾ, ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਯਾਰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗਾਲਿਬਨ ਆਏ ਸੀ। ਮੁਰੀਦ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂਗਾ ਮੰਡੀ, ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ, ਕਰਾਚੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧਾ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਬਸ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਰਸਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਸੇਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ 12 ਸੇਰ 6 ਸੇਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਸੇਰ ਸ਼ਾਮ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੇ ਅਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਪਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੱਝ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਲੈ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮੱਝ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੋਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਸ਼ਫੀਕ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰਮ ਪਾਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
वो जो दुआ करेंगे अल्लाह पाक भी राजी होएगा इंशाल्लाह। नसीर गोंदल बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। एक दो बातें भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। बस आज मेरा दिल किया मैंने अपने दोस्तों से, भाइयों से, बच्चों से कुछ बातें शेयर करूं कि मुझे हेपाटाइटिस बी हो गया जी। मैंने उसके रॉयल टेस्ट कराए, 50-55 हज़ार लगा। उसका पीसीआर करवाया, जो जो उसमें होता था। उन्होंने कहा जी आपको इंजेक्शन लगेंगे। मैंने कहा जी अभी अर्ली स्टेज है। उन्होंने कहा अर्ली स्टेज है, तो मैंने इंजेक्शन नहीं लगवाए। उन्होंने कहा तबीयत की बात भी बताता हूँ। उन्होंने कहा मीठा नहीं खाना, मैंने दब के मीठा खाया। उन्होंने कहा चकनाई नहीं खानी, मैंने जनाब देसी मक्खन में और देसी घी में चोपड़ चोपड़ के रोटियां खाई। और मैंने घर में किसी फर्द को नहीं बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं हर 2 माह 3 माह के बाद अपना पीसीआर करवाता, एक्टिव है जी, एक्टिव है जी। इसी तरह 5-6 साल गुजर गए। यूनियन में फिर एक प्रॉब्लम आई, मैं ज़रा यूनियन से दिल बर्दाश्ता हुआ, तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने तो अपने कोर्स करवाना है, तो मैं अब ये जो काम है ना, ये जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। रिजवान खान बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं दोस्तों के कमेंट्स के जवाब दूंगा तो मेरी जो है वो रवानगी है वो थोड़ी सी मुतासर होगी। आप सब भाइयों की दुआओं का शुक्रिया, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। तो मैंने कहा जी मैंने इंजेक्शन लगवाने हैं, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए, क्योंकि जब इंजेक्शन लगते हैं तो बंदा जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा आवाज़ार हो जाता है, तो यूनियन के काम करना जो है ना मुश्किल हो जाएंगे, और मैं ऐसी चीज़ को चिमटा हुआ नहीं रहना चाहता। एक दोस्त बजिद हो गया, उसने कहा जी आप ना एक दफ़ा दोबारा टेस्ट करवाएं। मैंने कहा जी सॉरी, मैंने टेस्ट नहीं करवाना, मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है कि मैं टेस्ट ही करवाता रहूँ, मैं डायरेक्ट इंजेक्शन लगवाऊँगा। तो वो दोस्त मेरे साथ ज़िद कर गए, तो उनकी ज़िद की वजह से जनाब मैंने जो है अपने टेस्ट करवाए। अब कुदरत खुदा की देखे, उन्होंने कहा जी आपको तो हेपेटाइटिस है ही नहीं। लोग 2-2, मेरे बाजार के कई दोस्तों ने 2-2 कोर्स करवाए हैं, उनको हेपेटाइटिस नेगेटिव नहीं हुआ, और अल्लाह पाक ने करम फरमाया मेरा बगैर इंजेक्शनों के हो गया। और उसके बाद से मैं अब तक अपने टेस्ट करवाता चला रहा हूँ। अब भी मैंने पिछले दिनों अपने टेस्ट करवाए, तो उन्होंने कहा जी ब्लड आपका ना बॉर्डर लाइन पे है। मैंने कहा जी इसका क्या मकसद है? उन्होंने कहा जी हो सकता है। मैं दिल में हंस पड़ा, मैंने कहा यार ये तो हुआ था, तो जिस मालक ने इसको हुए को बॉर्डर लाइन पे पहुंचा दिया तो ये नहीं होता इंशाल्लाह। तो अल्लाह की करम नवाजी है। जब आप नेकी और भलाई वाले काम करते हैं तो अल्लाह पाक आप पे करम फरमाते हैं। मेरे बेटे अवैस अब्दुल्ला को आप सब जानते हैं, उसकी बीमारी के बारे में भी यकीनन बहुत सारे दोस्तों को इल्म होगा। मेरे ऊपर 1 साल थोड़ा सा वो मेरा अल्लाह जानता है क्या मामला थे। मैं तो दोस्तों को कहता हूँ कि मैं तो इस काबिल ही नहीं मेरे इम्तिहान हो, ये मेरे इर्द गिर्द वालों के इम्तिहान थे कि भी मुश्किल वक़्त में मैं दोस्तों के साथ कैसे चलता हूँ और दोस्त मेरे साथ कैसे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब दोस्त मेरे साथ बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा चले। उन्होंने बड़ी मोहब्बतें दिखाई, बड़ी मुझसे शफ़क़तें की। सबसे पहले मेरी मेरी वालदा को कैंसर की शिकायत हो गई। अल्लाह ने करम किया, उनकी ट्रीटमेंट हुई, वो ठीक हो गई। उसके बाद मेरी मिसेस अटैक आ गया, उनका बाईपास हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक हो गई। फिर अवैस अब्दुल्ला को ब्लड कैंसर डायग्नोज हो गया। एक दोस्त मुझे कहने लगे यार कोई अल्लाह की पकड़ आ गई। मैंने कहा प्यारे भाई कैसे अल्लाह की पकड़ आ गई? अल्लाह की पकड़ आती, अम्मा को ब्लड कैंसर, अम्मा को कैंसर डायग्नोज हुआ, अम्मा कैंसर में दुनिया से चले जाती तो मैं समझता यार मुश्किल आ गई। अल्लाह ने अम्मा को शिफा दी। अवैस की अम्मा को जब हार्ट अटैक आया तो अल्लाह ने अवैस की अम्मा को भी शिफा दी। ये उसके करम हुए ना मुझ पर, ये उसकी रहमतें हैं, ये उसके फजल हैं।
और अवैस अब्दुल्ला को ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अल्लाह सेहत तंदुरुस्त है, मेरे भाई मोहम्मद हुसैन को सबब बन गए। तो मैं अगले दिन फेसबुक पे देख रहा था, वो पीर हक खतीब हुसैन बादशाह सरकार गालिबन नाम है, उनकी वीडियो पे लोग बड़े अजीब अजीब और बेहुदा कमेंट्स कर रहे थे। मेरे बेटे को भी वहीं से अल्लाह ने शिफा, अल्लाह ने मिन जानब अल्लाह, बस वो भी यही कहते हैं कि शिफा अल्लाह देता है। मेरे पास जो इल्म है मैं उसके मुताबिक करता हूँ, बाकी शिफा अल्लाह ने देनी है। तो अल्लाह पाक ने मेरे बेटे अवैस अब्दुल्ला को भी शिफा दी। तो इसका मतलब है कि उसकी मेरे लिए आसानियाँ थीं, तो वो आसानियाँ अल्लाह पाक के फजल से पूरी हुई। तो ये सारी बातें बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसे हमें रास्ते मुतय्यन करने हैं कि जो हमारी आने वाली नस्लें हमारी तकलीद करें। साथ बेटा अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, ये अल्लाह के काम है। अगर कोई देखें, मेरे बेटे को था ना, तो हम बाप बेटा आपस में डिस्कस करते थे। वो मुझे कहता था कि अब्बू जी अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो बड़ी दादी के पास मेरी कब्र बनाना। तो मैं उसे कहता था बेटा अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, अगर ऐसा मामला हुआ तो ज़रूर ऐसे ही करेंगे। तो ये अल्लाह का माल है, उसने बख्श दिया, उसकी मेहरबानी, वो ले जाए तो उसकी मर्ज़ी। उसके साथ तो माशाल्लाह मेरे बेटे राना अवैस साहब भी ऑनलाइन हो गए जी। अल्लाह मेरे बेटे को ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी एक हम रूटीन सेट करें। मैंने देखा है फेसबुक ग्रुप्स के अंदर बड़ी मनापली चलती है, बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। बज़ाहिर लोग कुछ कहते हैं, अंदर पे कुछ होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं। अल्लाह पाक मग़फ़िरत कर फरमाए राना आसफ़ मरहूम की। इस फील्ड में उन्होंने बड़ी हमारी रहनुमाई की। वो एक अच्छे ज़हन के और अच्छी सोच के मालिक इंसान थे, मालिक इंसान थे। अल्लाह पाक उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये उनका विजन था कि सबकी भलाई सोचो, सबकी भलाई सोचो, और उस भलाई के रास्ते पे चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज इस लेवल पे अल्लाह ने हमें पहुंचाया है। मैंने यहाँ पे देखा है कि कुछ लोगों के कुछ ज़ाती मफादात की खातर उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं। अपना अनमोल है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा अनमोल है, मैं कहता हूँ ये आप सबका अनमोल है। कुछ दोस्त उसे गोश्त का पहाड़ कहते हैं। भाई गोश्त का पहाड़ है, जो भी है, मैं समझता हूँ वो एक ट्रेंड सेटर बना है। उसको देखते हुए लोगों ने बच्चों की ग्रोथ पर तवज्जो दी है। क्या आपके दिल में माँ बाप वाला दिल है? अगर है तो उस जानवर की जगह खुद को रख के सोचिए कि एक गाय जब बच्चा जन्म देती है, आप उसके बच्चे को लेके चलते हैं तो वो आपके पीछे पीछे चलती है। आप उसके बच्चे को साइड पे करते हैं तो कैसे वो परेशान होती है। उसकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें। इन बच्चों की आप केयर करेंगे, अल्लाह भी आपसे राजी होंगे, अल्लाह के रसूल भी राजी होंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बंदे की जो वो जज्बात हैं वो बेकाबू होने की कोशिश करते हैं। मैं ये जो डेयरी का काम करता हूँ ना जी, मैं इसे बतौर बिजनेस नहीं कर रहा। मैं इसे सिर्फ अल्लाह की रज़ा का मौका समझता हूँ, अल्लाह की रज़ा का सबब समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि वो मालिक जो है वो राज़िक वो है। वो आपके लिए आसानियाँ पैदा करना जब चाहता है तो वो बड़े वसीले, बड़े रास्ते बना देता है। बड़े रास्ते मुतय्यन कर देता है। वो बड़ा गफूर और रहीम है। मुझ पे तो मेरे मालिक की बड़ी करम नवाजी हैं, बड़ी करम नवाजी हैं। जो मुझे जानते हैं ना, वो
अल्लाह गनी। उन्हें पता है। एक छोटी सी और छोटा सा एक वाक़या सुनाता हूँ। मुझे एक फ़ोन कॉल आई, कुछ दोस्त थे, उन्होंने कहा जी हमें आपसे मिलना है, कुछ टाइम चाहिए। तो मैंने कहा जी हुक्म करें। मैं दुकान बंद करके घर पहुंच गया था। मैंने कहा जी आप कल किस टाइम शॉप पे आ जाएं। उन्होंने कहा जी ज़रूरी काम है, अगर आप हमें टाइम अभी इनायत फरमा दें तो। मैंने कहा जी आप कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा जी हम शाही रोड पे हैं। तो मेरा रहायश करीबी यानी कि करीब ही था, मैं पाँव पाँव चल के वहाँ पे पहुँच सकता था। तो मैंने उन्हें कहा आप शॉप पे आ जाएं। मैं दुकान से चला तो दुकान के आगे जो थड़ा बना होता है ना, मैं उस थड़े पे जाके बैठ गया और तीन अशखास जो माशाल्लाह बड़े कद्दावर, ऊंचे लंबे, साफ सुथरे वीआईपी कपड़े, घड़ियां लगी, यानी कि शक्ल से पता लगता था भी कोई जेंट्री के दोस्त तशरीफ ला रहे हैं। अब मेरी दुकान के सामने आके ना तो उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जब देख रहे तो मैंने कहा जी राना अमीर मोहम्मद से मिलना है। उन्होंने कहा जी उन्हें मिलना है। मैंने कहा ये जो बंदा थड़े पे बैठा हुआ है ना, यही राना अमीर मोहम्मद है। तो वो थोड़े से हैरान भी हुए, थोड़े से परेशान भी, और थोड़े से तजब्जुब में आ गए। तो मैंने कहा जी मेरा ख्याल है ऊपर ऑफिस में चल के बैठते हैं। तो मैं उन्हें थड़े से उठा, उन्हें मिला और मिल के मैं ऊपर अपने ऑफिस में ले गया। जब वो मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए तो उनकी कैफियत बहाल हो गई। जो दोस्त आए थे उन्होंने मेरा पूरा सिस्टम विज़िट किया था, तो उनकी कैफियत बहाल हो गई। तो मैंने कहा जी कुछ मायूस लगे आप मुझे नीचे। कहने लगे जी हम जिस राना अमीर मोहम्मद से मिलने आए थे ना, इस दफ्तर में तो वो है मगर उस थड़े पे हमें वो नज़र नहीं आया था। मैंने कहा भाई वही थड़े वाला राना अमीर मोहम्मद इस दफ्तर में बैठता है और इसी दफ्तर वाला राना अमीर मोहम्मद उस थड़े पे भी बैठ जाता है। तो आप हुक्म करें। उन्होंने कोई काम बताया, उनका काम जायज़ था। मैंने कहा जी मैं कोशिश करूँगा, तो अल्लाह पाक करम फरमाएंगे, यकीनन अल्लाह पाक मेहरबानी करेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो वो अल्लाह ने उनका काम कर दिया। तो तबीयतन कुछ ऐसा ही हूँ, ये अल्लाह की मेहरबानी है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इस तबीयत को इस फील्ड के लिए भी इस्तेमाल करूँ जितने बेहतर से बेहतर अंदाज में हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कुछ मेरी सोच के हामिल भाई हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब हैं इस्लामाबाद में, मैंने उनकी तबीयत देखी है। मेरी सोच के हामिल भाई सैफुल्ला साहब हैं टोबा टेक सिंह में, बेलौस, अल्लाह ने बड़ा नवाजा हुआ है। इसी तरह मेरी तबीयत और मेरी सोच के हामिल मुझे प्यारे भाई अब्दुल वाजिद गुज्जर भी लगते हैं। वो भी बेलौस चलते हैं, बेलौस मशवरे देते हैं। इसी तरह के मुझे राना वकास असलम भी लगते हैं। मैं उन्हें भतीजा बोलता हूँ, वो मुझे बाबा जी बोलते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आप दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आप दोस्त मेरी बातें बड़े गौर से और तवज्जो से सुन रहे हैं। बस कुछ ऐसे काम करने का शौक़ है, जुनून है कि मरने के बाद भी लोग आपको याद करें। मैं सुनता हूँ हमारे यहाँ रहीम यार खान में एक जावेद चीमा साहब थे, भैंसों के शौकीन थे, आज भी लोग उनका नाम बड़े एहतराम से लेते हैं। मेरा दिल करता है कि अगर मैं इस दुनिया से जाऊं, राना आसफ साहब का इंतकाल हुआ, मेरी मुलाकात नहीं थी, सिर्फ उनकी आवाज़ सुनी थी, और वो आवाज़ मुझे रहीम यार खान से तकरीबन 9-10 घंटे मेरी अपनी गाड़ी पे लगे थे वहाँ। तो मैं उनके जनाजे में पहुँचा, उस आवाज़ ने मुझे खींचा। मेरा दिल करता है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मेरे लिए पीछे बहुत सारे लोगों की दुआएं हों, बहुत सारे हाथ उठे मेरे लिए, जो बेसाख्ता उनकी आंखों में मेरे लिए आंसू आए। उनका मेरा कोई तल्लक ना हो, कोई मेरी उनके साथ मुलाकात ना हो, मगर उन्हें ऐसे महसूस हो जैसे उनका अपना इस दुनिया से चले गया।
बस कुछ ऐसा ही हूं। फ़हीम गुजर, बेटा मेरा ज्वेलरी का काम है। इसमें मैं पहले बता चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अच्छा सेटअप है। मेरे पास ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो भी पूरा सिस्टम है। एक टाइम ऐसा भी था कि मेरे पास 70 कारीगर काम करते थे। अब तो काम की वो पोजीशनें नहीं है, अभी भी काफ़ी कारीगर मेरे पास काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ने एक ना रोज़ी का बहाना बनाया हुआ है और कुछ नहीं है। एक छोटा सा और भी आपसे किस्सा शेयर करता हूँ। क्या याद करेंगे कि आज ना बाबा जज्बाती हुआ बैठा है। एक मार्केट के अंदर हम बैठे हुए थे, तो वहाँ पे हमारे जो है ना ये नाज़म वाला सिस्टम था, नायब नाज़म है फजल अहमद सलीमी साहब, वो भी बैठे हुए थे, वो भी तशरीफ़ रख रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप हामिद साहब के बैठे हो। मैंने कहा नहीं चाचा जी, मैं ना हाजी अहमद ख़ान साहब का बेटा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके अब्बू को ना बचपन से जानता हूँ, आप हामिद साहब के बेटे हो। मैंने कहा अगर आप मेरे अब्बू को बचपन से जानते हैं तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि मेरे अब्बू सर पे चने रख के फ़रोख्त किया करते थे। सर पे चने रख के फ़रोख्त किया करते थे। मेरे अब्बू ने लकड़ों की टाल भी चलाई। वो ना बड़ा हैरान होके मेरे चेहरे की तरफ देखने लग गए। उन्होंने कहा राना साहब, इस वक्त जिस लेवल पे आप हैं, जितना अल्लाह ताला ने आपको इज्जत से नवाजा है, इस तरह की कोई बात अगर किसी बंदे से करे, बेशक वो हकीकत पे मबनी हो, तो वो उसका सर खोल दे। मैंने कहा चाचा जी, मेरे वालिदैन ने हमें सब कुछ बताया है और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें नवाजा है। उसने कहा फिर तुम्हारे अब्बू ने ये नहीं आप लोगों को बताया कि इंडिया में आपके बड़े नवाब थे? मैंने कहा जी ये भी बताया है, और जो पुराने हैं वो ज़िला हिसार के, वो आज भी हमें नवाब साहब कहते हैं। अगर हम अपने मुंह से कहेंगे ना तो लोग कहेंगे 4 पैसे आ गए तो नवाब बन गए। हम लोगों को वही बताते हैं जो ज़्यादा लोगों ने देखा है। जिनको पता है उन्हें तो पता ही पता है। तो बेसरो समानी के आलम में वहाँ से हिजरत करके आए थे। मेरे दादाजी का इंतकाल हो गया, मेरी 3 फूफियों का रास्ते में इंतकाल हो गया। मेरी दादी जान ने मेरे अब्बू के सर पे, छोटे से थे मेरे अब्बू 6 साल के, तो उनके सर पे उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजार दी। और इन्हें वहाँ के यहाँ क्लेम मिले, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये उन क्लेमों को कैश करवा लेते, मगर फिर भी मेरे वालिद साहब पे अल्लाह का करम रहा। मेरे वालिद साहब ने अपनी वालदा को हज करवाया। मेरे अब्बा जी को अल्लाह ने 5 बेटे अता किए, 1 बेटी अता की। अल्लाह के करम और फजल से मेरे अब्बू के 5 बेटे फरमाबरदार। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं दादा भी हूँ, नाना भी हूँ। मेरे वालिद भी हयात हैं, मेरी वालदा भी हयात हैं, और मेरी दादी मेरे बच्चे देख के इस दुनिया से गई हैं। और मेरी जुर्रत नहीं है कि आज भी मैं अपनी वालदा के हुक्म के बग़ैर कोई अमल कर सकूं। मेरे बच्चों के रिश्ते आते हैं तो मेरी वालदा अप्रूवल देती हैं, वो पास करती हैं तो पास है, वो कहती हैं नहीं तो सॉरी। तो मैं ये समझता हूँ आप कोई भी अच्छा अमल करें ना, वो आपका रायगा नहीं जाता। मेरे वालिद साहब ने, मेरी वालदा ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी स्ट्रगल की है, मेरे वालिद के साथ पूरा पूरा साथ दिया है। अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजा है। 5 बेटे हैं, 5 के 5 अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को सिगरेट तक की आदत नहीं है, ये मालिक का करम है ना। किसी भाई को सिगरेट पीने तक की आदत नहीं है। अल्लाह ने सबको साहिब औलाद किया है। जो मेरी बहू है वो मेरे भाई की बेटी है, और अल्लाह उसे की उम्र दराज करे इंतहाई। क्यों? मेरी मिसिज़ ने अपनी सास की खिदमत की, मेरी वालदा ने अपनी सास की खिदमत की। मेरी वालदा को बहू अच्छी मिली, मेरी मिसेज़ को अल्लाह ने बहू अच्छी दी।
तो यकीनन मेरी बहू को भी आगे अल्लाह पाक अच्छी बहू ही अता करेंगे, क्योंकि वो खुद एक अच्छी बहू है। राना वकास बिल्कुल ऐसे ही है जी। राना आसफ भाई के जो मिशन है, जो उनका जो आदकबर वीर जी अस्सलाम वालेकुम, जो उनका मिशन है, उस मिशन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह। उनकी अच्छी सोच को हम फ़रोग देते रहेंगे। तो मैं ज़ाती तौर पे ये चाहता हूँ कि इस मिशन को हम कुछ इस लेवल पे कामयाब करें कि लोग कहें कि यार बस अगर उन्होंने भेजा है तो वो ठीक होगा, उसमें गलत नहीं हो सकता। अगर कोई गलत है तो उसमें हमारी कोई संभाल की गलती हो सकती है, कोई और मामला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि उस बंदे की तरफ से कोई चीज़ आए तो वो गलत हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह का यकीन हमें दूसरे दोस्तों के दिलों में पैदा करना है। इसके लिए मैं समझता हूं कि जो दोस्त समझते हैं कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर सकते हैं, अपना नफ़ा रखें। मैं नहीं इख्तलाफ करता इस बात से, मगर काम कुछ इस लेवल पे कर दें। जी जवाद वीर जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई शक नहीं कि मालक दा करम है जी, सोने रब दियां करम नवाजियां ने। कुछ उस लेवल के अमल कर जाएं कि दुनिया आपको आपके जाने के बाद भी याद करे, ये आपको रोज़ी भी मिले और वो रोज़ी बरकत का बायस भी हो, मगफरत का बायस भी हो। मैंने पहली भैंस 1,70,000 रुपये की ख़रीदी। मैं आज तक उस बंदे को दुआएं देता हूँ। उस भैंस का नाम हमने मलका भैंस रखा। 2 सुए पीने के बाद उसे 1,70 वाली भैंस का मुझे 3.5 लाख रुपया मिलता था, मगर क्योंकि मैं इनसे प्यार करता हूँ, मैंने कहा नहीं जी मैं बेचता नहीं, तो वो मेरी भैंस एक्सपायर हो गई। तो ये अल्लाह के काम है। जानवर आपका चले जाए, कभी गम ना करें, कभी गम ना करें। मैंने एक हदीस इस बारे में सुनी हुई है, अल्लाह मुझे कमी बेशी माफ़ फरमाए, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक उनका प्यारा जो था वो गया। उसने कहा कि अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होते हैं, तो मुझे अल्लाह से कह के ना जानवरों की बोली का इल्म अता फरमाए। आपने कहा ये मालिक की हिकमतें हैं, वो बेहतर जानता है, तो ये ज़िद नाजायज़ है, तुम ये ज़िद नहीं करो। उसने कहा जी नहीं, मेहरबानी करें, मुझे ये ज़रा शौक़ है, तो ये लाजमी मेरे लिए आपने करना है। आप अल्लाह से हम कलाम हुए, तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम से जब गुफ्तगू की, तो हज़रत मूसा ने कहा कि अल्लाह मेरा एक बड़ा प्यारा है, तो वो ये ज़िद कर बैठा है, तो मेहरबानी करें उसको ये इल्म अता फरमाएं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरी हिकमतें मैं बेहतर समझता हूँ, तो ये उसके लिए बेहतर नहीं है। आपने कहा मैंने उसको बड़ा समझाया, मगर उसको मेरी बात समझ नहीं आई। अल्लाह ने कहा ठीक है, उसको मैं 2 जानवरों का इल्म अता फरमाता हूँ। जब वो मगरब के बाद अपने घर में दाखिल होगा, तो उसे उन 2 जानवरों की बोली समझ आएगी। अल्लाह मुझे कमी बेशी माफ़ फरमाए। गालिबन कुत्ता और मुर्ग थे। आपने उस शख्स को कहा, वो खुशी खुशी मगरब के बाद जब घर में दाखिल होता है, तो उन 2 जानवरों की गुफ्तगू सुनता है। कुत्ता और मुर्ग गुफ्तगू कर रहे हैं। कुत्ता कहता है कि यार तू आज़ाद है, चलता फिरता है, अपनी मर्जी से दाना दून का चुगता है। मैं दोस्तों से एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा कि इसका लिंक कॉपी करके दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। शायद मेरी बातों में से किसी को कोई अच्छी बात लग जाए, शायद कोई ऐसी बात दोस्तों को पसंद आ जाए जिससे हमारा भी भला हो, उसका भी भला हो। तो अगर दोस्त मेरी बात को समझ रहे हैं, तो इसके जो है ना, इसका लिंक जो है अपने माशाल्लाह बहुत सारे ग्रुप्स हैं। डेरी बफलो ब्रीड ग्रुप है, मज्जा और गाँव के शौकीन है माशाल्लाह, एजाज मुस्तोई भाई का ग्रुप्स है, और बहुत सारे इखलाक अहमद रिजवी साहब का ग्रुप है। तो उनमें भी इसको शेयर कर दें, ताकि दोस्तों को शायद कोई मेरे लफ्ज़ों में से उन्हें अच्छी बात मिल जाए।
तो बात चल रही थी जानवरों की बोली के हवाले से। उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जो कहा था, तो वो जब घर में दाखिल हुआ तो कुत्ता मुर्ग को कह रहा है कि तू आज़ाद है, तुझे अपनी मर्जी का दाना चुनने की सहूलत है, मैं बंधा हुआ हूँ, जो मुझे मिलता है मैं वही खाने का पाबंद हूँ, मेरा गोश्त खाने को दिल चाहता है। तो मुर्ग उसे आगे से कहता है तू फिक्र नहीं कर, ये चीज़ें हम लोगों की रहनुमाई के लिए थी, बाकी तो अल्लाह को सब इल्म होता है, तू फिक्र नहीं कर, मालिक की गाय मरनी है सुबह तो तुझे गोश्त मिलेगा। मालिक बड़ा खुश हुआ, जाके गाय को फरोख्त कर आया और इस चीज़ पे बड़ा ही राज़ी हुआ कि मुझे ऐसा नॉलेज आया कि मेरा फ़ायदा हुआ। अगले दिन फिर जब मगरिब के टाइम पे घर पे जाता है तो वो आपस में फिर गुफ्तो शनीद कर रहे होते हैं कि यार तूने कल कहा था गाय मरेगी, गाय तो मरी नहीं। उसने कहा यार अच्छा वो तो जो होना तो हो गया, तो कल मालिक का जो है ना घोड़ा मरेगा, गाय से घोड़ा ज़्यादा कीमती था, तो तुझे गोश्त मिले ही मिले। मालिक कोई मेरे जैसा था, उसने कहा कि यार ये तो बात बड़ा ही गुर मिल गया, जाके घोड़ा भी बेच आया और बड़ा खुश। अब दूसरे दिन तीसरे दिन जब वो दोबारा उनकी गुफ्तो शनी सुनता है तो कुत्ता मुर्ग को कहता है तू झूठा है, तू गलत बयानी से काम लेता है। वो कहता है नहीं, मैं गलत बयानी से काम नहीं लेता, कल मालिक ने खुद जो है इस दुनिया से चले जाना है और देगें उतरेंगी। इससे यह भी साबित हो रहा है मेरा ख्याल है कि उस दौर में भी देगें उतरती थी तो तुझे गोश्त मिलेगा। वैसे मैं किसी मसलक की वो इसमें नहीं कर रहा, वैसे बस वो बात ज़हन में आ गई, तो तुझे गोश्त मिलेगा। बड़ा परेशान हुआ, बड़ा घबराया, भागा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मूसा कलीमुल्लाह की तरफ। जब वहाँ पे पहुँचा तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सारी बात सुनाई। हज़रत मूसा ने कहा कि मैंने तुझे कहा था कि अल्लाह की हिकमतें अल्लाह बेहतर जानते हैं, मगर तू नहीं हटा, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई। अल्लाह ने तेरी सख्ती तेरी गाय पे डाली, तू उसे बेच आया। अल्लाह पाक ने तेरी सख्ती तेरे दूसरे जानवर घोड़े पे डाली, तू घोड़ा भी बेच आया। अब तेरा वक़्त मुकर्रर हो चुका, अब तू बचेगा नहीं। मैं सिर्फ तेरे लिए ये दुआ करूँगा कि तेरा खात्मा बिल ईमान हो जाए, कि ये ना हो कि तू ईमान से ही जाता रहे। तेरा खात्मा बिल ईमान हो जाए। तो ये दोस्तों, अगर आपका माल जाता है कभी भी दिल पे ना लें, ये सोचें, ये समझें कि ये शायद मालिक ने मेरे लिए करम नवाजी की है। मैंने इंपोर्टेड गायें खरीद की 16, ट्रक से उतरी, 2 एक्सपायर हो गई। अगले दिन एक, उससे अगले दिन एक, उससे अगले दिन एक, 6 दिन के अंदर 7 गायें गई जी मेरी। जब शाम को जाता ना तो उन्होंने कहा जी ऐसा वो गाय चली गई। मैंने कहा यार अल्लाह की मर्जी, कोई अल्लाह की हिकमत होगी। तो एक दिन मेरे वहाँ पे एक दोस्त थे, वो मुझे कहने लगे यार राणा साहब कभी ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਣਾ ਮੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ नेमल बदल नहीं हैगा, मैं चले गया, मैं चले गया, गाय एक चलेगी होर आ जाएगी, वो चलेगी होर आ जाएगी। ये अल्लाह पाक ने माल इस तरह बनाया कि तुम अपने हाथ नाल ज़िबा कर देंगे हो। तो इसलिए औलाद है, जान तुहाडी है, ये नाकाबिले तब्दील चीज़ां ने। इसलिए तुसी जिहड़ा ना इन्हां नूं दिल ते नहीं लैना। तुहाडा कोई जानवर, दूसरा मैनूं दुख भी हुंदा है, मैनूं अज तक बड़े जानवर गए ने, एक जानवर का मैनूं अफसोस ज़्यादा आया। मेरी मलका मज मर गई, मैं क्या अल्लाह की रज़ा, असीं उहदी पूरी ट्रीटमेंट की, नहीं बची। मैनूं एक जिस दिन राणा आसफ साहब का इंतकाल होया, मेरी एक झोटी बीमार सी, तो मैं डॉक्टर नूं कह के गया,
वापसी ते आया तो मुंडे ने मैंने कहा जी झोटी मार गई। वो मुझे तकलीफ भी, गुस्सा भी आया। अब उसकी रीज़न भी पूछेंगे। उसकी रीज़न ये है कि हम उसकी केयर नहीं कर सके। जो आपकी केयरलेस की वजह से जानवर मर जाए या एक्सपायर हो जाए, उसका दुख होना चाहिए। आपने उसका इलाज कराया, उसकी केयर की, वो अल्लाह की मर्जी। मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। ज़िंदगी रही और दोबारा कोई इस तरह का मूड बना तो दोस्तों के साथ इंशाल्लाह फिर कोई दुख सुख कर लेंगे। सब दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, जीते रहिए। सदाबहार खुशियाँ अल्लाह ताला आप सबको नसीब फरमाए। आपके जान में, औलाद में, वालदैन में, सब में आसानियों वाले मामले फरमाए। जिनके वालदैन हयात हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए। जिन दोस्तों को औलाद नहीं है अल्लाह उन्हें नेक और साले औलाद नरीना अता फरमाए, और जिनको औलाद अता फरमाई है अल्लाह उनकी औलाद को नेक और साले करे। एक दो दिन पहले एक ग्रुप में पोस्ट नज़र से गुजरी तो एक दोस्त कह रहे थे कि अल्लाह में आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए, आमीन सुम आमीन। और शैतान बेशक चार भी हों, तो इस तरह से कुछ लिखा हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शैतान जो है वो एक ही बहुत है। शैतान के चेले बहुत हैं दुनिया में। शैतान के चेले मुख्तलिफ लबादे ओढ़े हुए इस दुनिया के अंदर बहुत हैं। चार यार मिलके खिदमत का जज्बा ले लें ज़हन में तो उन जैसा कोई है ही नहीं है। अगर वो ये सोच लें चार यार मिलके कि हमने अच्छाई पे चलना है, तो मैं कहता हूँ सारी दुनिया जो मर्जी कहती फिरे, कुछ भी नहीं होता, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूनियन के इलेक्शन के लिए लोग लाखों रुपए लगाते हैं, लोग झगड़े करते हैं, और आपका ये भाई, आपका ये चाचा, मैं कहता मेरी जान छोड़ो, वो कहते हैं नहीं छोड़नी। 10-11वां साल लग गया है। यहाँ साल साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं, 2-2 साल में बाद हो जाते हैं, 3-3 साल बाद हो जाते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि भाई इलेक्शन करवाएं। मैं कहा जी बिल्कुल करवाओ, जिसके बनाओगे बनेगा, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मेरी तरफ से जवाब है। वो कहते हैं तो पहले ही जवाब देती खड़ा है। ये डरेगा घबराएगा तो अगले कहेंगे ना इलेक्शन कराओ। ये तो कहता है हाँ जी ले लो जी सीट, जिन मर्जी बात हो। तो इन चीज़ों से प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छाई से प्यार कीजिए, अच्छे लोगों से प्यार कीजिए, बुरे लोगों से प्यार कीजिए। जो दूसरों में नक्स निकालते हैं उनसे भी प्यार कीजिए, उन्हें इस चीज़ पे कायल कीजिए। अब पिछले दिनों एक दोस्त ने एक पोस्ट में कमेंट किया, ओ भाई, तो मैंने उसे नीचे लिखा कि अगर आप प्यारे भाई लिखेंगे तो कितना खर्चा ज़्यादा आएगा। देखें, हर बंदे के समझाने का अपना अंदाज है। जब मैंने ये कमेंट किया तो थोड़ी देर बाद रिप्लाई आ गई। उसने कहा जी मैं शर्मिंदा हूं, आइंदा से मैं एहतियात करूंगा। आपसे कोई भी गुफ्तगू करता है, आप फेसबुक पे कोई भी कमेंट करते हैं, आप कोशिश करें इंतहाई महज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें, रोशन पहलू पे नज़र रखें, नेगेटिव अंधेरों को तलाश मत करें। हमने अनमोल की पोस्ट लगाई, लोगों ने बड़े एतराज़ात किए। मैंने कहा यार क्यों अंधेरा ढूंढते हो, क्यों मुझे आप कहते हो कि झूठा है। आप लोग मेरी बात पे यकीन करते हुए इसे सोचो भी ये किस तरह से इसकी ग्रोथ ली गई। अब एक दोस्त ने कहा कि हमने 12 महीने की कट्टी प्रेग्नेंट करवाई थी। मैंने उसकी बात को 100% यकीन जाना, और मेरी कोशिश है कि वो उसने 12 की कराई, चले मैं 15 की करवा लूँ। कि एक अच्छी सोच को आप अच्छे पहलू से लें, आप उसकी तारीकियों में मत जाएं। पिछले दिनों भाई अब्दुल वाजिद गुजर साहब माशाल्लाह अपना शेखपुरा मेले में जज बने थे। उसके अंदर
राना वकास आजम साहब जज थे, उसके अंदर हमारे प्यारे भाई हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का झोटा गया था, रिजेक्ट हो गया। हमारे एक बरखुरदार हैं अहमद विर्क साहब, उनका झोटा गया था, रिजेक्ट हो गया। तो अब बहुत सारे दोस्तों ने उस पर पोस्टें लगाई कि अपनों को नवाजा। जितना प्यार और मोहब्बत भाई अब्दुल वाजिद और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का है, वो अपने आपस में भाइयों की तरह हैं। अगर इस तरह का काम होता नवाजने वाला, तो यकीनन वो उन्हें नवाजते। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोग वो अमल करें जिससे हमें इत्तफाक भाईचारा नसीब हो, हमारा प्यार मोहब्बत बढ़े, ना कि हम वो अमल करें कि जिससे कदूरतें बढ़ें, हम दूसरे की चीज़ को बुरा बना के पेश करने की कोशिश करें, अंडरग्राउंड मीटिंग्स करें और दूसरे की चीज़ों को उसको गंदा करने के लिए प्लान बनाएं। ये शैतानी अमल है। शैतानी अमल कभी भी इंसान को इज्जत नहीं दे सकते, कभी भी नहीं। आप अंदर बैठ के या बाहर बैठ के, चौपाल में बैठे, एक बंद कमरे में बैठे, मैं इस वक्त बंद कमरे में बैठा हूँ, मैं अकेला आपसे मुखातिब हूँ और आप सब दोस्त मेरी बात को सुन रहे हैं। तो मकसद क्या है? भलाई, अच्छाई, किसी नेक और अच्छे अमल के लिए। तो आप अपनी सब दोस्त सोच को अच्छाई की तरफ ले जाएं, पॉजिटिव ढूंढें, नेगेटिव को इग्नोर करें। कोई आपको सख्ती से बोलता है, उसे प्यार से बोलें। कब तक वो सख्ती से बोल सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कूड़ा फेंकने वाले भी ईमान ले आए। क्या था? हुस्न इखलाक था। तो हुस्न इखलाक जो है ना, ठीक है साथ जी, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्त दे। शब खैर, रब रखा, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू जारी रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।